تو میں ابھی آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم پاس رفیق کھوکھر کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے درمیان میں آئیں گے اور خدا کے کلام اقدس کی منادی کریں گا۔ یہ زوردار تالیاں خدا کے خادم کے لیے، خدا کے بندہ کے لیے۔ ہاللیلویا۔ اس سے پہلے کہ آپ بیٹھیں، ہم کلام خدا کی تلاوت کو آپ کے کھڑے ہی کھڑے ہم پڑھیں گے تاکہ خدا کے کلام کی تعظیم ہو اور اس کو ہم عزت دے سکیں۔ کلام خدا میں سے دوسرا سلاطین، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی پہلی 8 آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ دوسرا سلاطین دوسرا باب اور اس کی پہلی 8 آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ غور سے سنیے گا۔ خدا کے کلام میں یہ رقم ہے، اور خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا، تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتیل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند مجھے یرہو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یرہو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یرہو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند کی شکر گزاری ہو۔ تشریف رکھیے۔ مسیح یسوع کے پرجلال، باکمال اور بے مثال نام میں آپ سبوں کو سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو ہلائیے۔ خداوند کی جے ہو، خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ یہ بڑا ہی خوبصورت وقت ہے جو آج خداوند نے میرے حصہ میں دیا ہے، تاکہ آج میں خدا کے حضور آپ سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو جاؤں، اور صرف اس کلام خدا کی بدولت۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کا آغاز کروں، ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ، ہم جب طالب علمی کے دور میں تھے، یعنی بائبل کالج جا رہے تھے، تو اس وقت ہمارے ایک بائبل ٹیچر نے کہا تھا کہ بیٹا تم جتنے مرضی بڑے خادم بن جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا، مہینے میں یا 2 مہینے میں کسی چھوٹے سے چھوٹے خادم کو بھی اگر سننا پڑے نا، تو ضرور سننا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا آپ سے بات کرے گا۔ ہاللیلویا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج تک یہاں پر مجھ سے بہت بڑے خادم آتے رہے، اور آج اس چھوٹے خادم کی باری ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ضرور سنیے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا آپ سے ضرور بات کرے گا، اور آپ بابرکت ہو کر لوٹیں گے، آمین۔
मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सीनियर खादम रेवरेंड सालिक जॉन बरकत साहब का, जिन्होंने ये मौका बख्शा कि हम यहाँ पर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें और बहुत सी रूहों के लिए निजात का सामान मुहैया कर सकें। ये तकरीबन कोई 1959 की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न का जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर बिली ग्राहम का किसने नाम सुना है? हाँ जी, बहुत सारे लोग जानते हैं। खुदा के खादम बिली ग्राहम का वहाँ पर बहुत बड़ा क्रूसेड था और पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। जिस तरह अमूमन यहाँ पर भी हमारी 13 मार्च की मीटिंग सबको याद है, खुदावंद के फजल से ये पूरा चर्च भी भरा हुआ था, ग्राउंड भी भरा हुआ था और ये साथ वाली जगह भी पूरी भरी हुई थी और गलियों में भी लोग नजर आ रहे थे। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस बड़े प्लेटफॉर्म के लिए। और वहां पर जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें बिली ग्राहम को मारने के लिए 20 लोगों को भेजा गया। कितने लोगों को? 20 लोगों को भेजा गया और कहा यह गया कि आपने इस शख्स को कत्ल करना है क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा परेशानी का बायस बन रहा है। वो 20 के 20 लोग जब वहां पर आए, अंदर आए, तो अंदर आकर उन्होंने देखा, उस वक्त ये बैंड नए नए शुरू हुए थे और उन्होंने देखा ना तो यहां पर कोई बैंड आया है ना कोई मशहूर सिंगर है, लेकिन इस एक बंदे की वजह से इतनी दुनिया यहां पर आई हुई है। तो उनका जो सरगना था ना, उसने कहा कि यार ऐसा करते हैं, जरा सुन लेते हैं कि ये कहता क्या है, करता क्या है। और फिर जब वो 20 के 20 लोग, कोई इधर बैठ गया कोई उधर बैठ गया, दो दो करके ना वो सारे मजमा में फैल गए ताकि जहां से भी उन्हें मौका मिले वो बिली ग्राहम को मार दें। खुदावंद के लोगों, हुआ ये कि जब खुदा का बंदा कलाम सुना चुका और कलाम सुनाते हुए वो जो दो दो लोग बैठे हुए थे, वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और वो दो दो करके जितने लोग वहां पर 20 के 20 लोग बैठे थे, मासवाए एक के जो उनका सरगना था, सब के सब कलाम की कुदरत के वसीला से रो रहे थे। वो 19 लोग तौबा कर चुके थे और जो 20वां था वो वहां से उठकर चला गया। दिल उसका भी पसीज गया कि ये कैसा बंदा है जिसको मारने के लिए हमें पैसे दिए गए हैं। और फिर जब वो बाहर किसी अशर से मिला तो वो कहता है कि भाई आप जा रहे हैं, क्या आप इबादत के आखिरी हिस्सा में शामिल नहीं होना चाहते? उसने कहा नहीं, मैं मारने आया था लेकिन मेरा अपना अंदर मर चुका है, अब मैं अपने आप में और ज्यादा तब्दीली नहीं ला सकता। तो वो अशर उसे कहता है, याद रख तुम 20 लोग आए थे, अगर तुम उसको मार भी देते, अगर तुम बिली ग्राहम को मार भी देते तो जो 19 लोग हैं वो 19 के 19 बिली ग्राहम बन जाते। खुदावंद के लोगों, यही सिलसिला मुझे लगता है हाउस ऑफ प्रेयर में शुरू हुआ है और खुदा के खादम ने जो ये सिलसिला शुरू किया है, मुझे लगता है कि खुदा का बंदा पालूस रसूल जिस तरह
अपने पीछे तीतस और थिमोथियस छोड़ के गया और बहुत से लोगों को छोड़ के गया ताकि खुदा की खिदमत का काम होता रहे और यीशु मसीह का पैगाम नजात हर एक जान, हर एक रूह तक और दुनिया के तूलो अर्ज तक पहुंचता रहे। वही बात आज यहां पर हाउस ऑफ प्रेयर में हो रही है। खुदा का खादम रेवरेंड सालेक जॉन बरकत आज अपने पीछे तीतस और थिमोथियस खड़े कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि वो जब यहां हो तब भी और जब वो यहां ना हो तब भी तीतस और थिमोथियस काम करते रहें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, इसी तरह शागिर्दियत का निज़ाम जो आज चल रहा है, ये हमने दो उस्ताद और शागिर्द को हमने स्टडी किया है। कलामे पाक का जो हवाला तिलावत किया गया है, इसमें एक बात जो मुझे इंस्पायर करती है और मैं उम्मीद करता हूं ये आपको भी कायल और मायल करेगी, और वो बात यह है कि शागिर्द बड़ा मुस्तकिल मिजाज है। आमीन। अलीशा बड़ा मुस्तकिल मिजाज है। वो कर क्या रहा है? उसका उस्ताद एलिया उसे साथ नहीं ले जाना चाह रहा, लेकिन वो जिद करके साथ आना चाह रहा है। पहले ही मौका पर जब वो जिलजाल में थे तो वहां पर उसने मना किया। उसने कहा, अलीशा तू यहीं रुक, मुझे खुदा ने बैतेल को बुलाया है। और वहां पर वो कसम खाता है, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध। सौगंध हिंदी जुबान का लफ्ज है, यानी वो दोनों मर्तबा कसम खाता है, अपने खुदा की भी और अपने उस्ताद की भी। यानी वो ये बताना चाहता है कि मुझे कोई भी शख्स, कोई भी काम मुझे मेरे उस्ताद की खिदमत से जुदा नहीं कर सकता। कोई अहम नहीं है कि मेरे और मेरे उस्ताद की खिदमत में हायल हो सके। हालेलुया। और उसने ऐसा किया कि उसने जिद की और जिद करके अपने उस्ताद के साथ आना शुरू हो गया। जलजाल से चला है, बैतेल को आए हैं, वहां पर कुछ अंबियाजादे मिले हैं और अंबियाजादों ने उसे कुछ खबर सुनाई है। वो तेनू पता है तेरा उस्ताद, तेरा आका आज तेरे तो जुदा हो जाएगा। कहता मुझे पता है, तुम चुप रहो। यानी रूहानी रहनुमा के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, लेकिन वो बड़ा मुस्तकिल मिजाज है। वो उस्ताद का बड़ा ताबेदार है, वो बड़ा फरमानबरदार है। वो अपनी फरमानबरदारी को जाहिर करता है और कहता है तुम चुप रहो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसके और उसके उस्ताद के ताल्लुक में कोई तीसरा ना आए। आज और ये दो मर्तबा हुआ है, बैतल में भी ऐसा हुआ है और फिर आगे जाकर यरहू में भी ऐसा हुआ है। दोनों मर्तबा अंबियाजादों ने कहा है कि तुझे मालूम है कि तेरा आका आज तुझसे जुदा हो जाएगा। तो उसने दोनों मर्तबा उनको चुप करवाया है। आज रूहानी रहनुमा के ताल्लुक से लोग बातें करते हैं और जो शागिर्द है वो चुप करके सुनते रहते हैं और उनकी गुफ्तगू का हिस्सा भी बन जाते हैं और कोशिश करते हैं, अगर 2 उन्होंने की हैं तो 10 वो अपने पास से भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, फरमानबरदारी नहीं है, वफादारी नहीं है, ताबेदारी नहीं है, जिसकी वजह से हम बेबरकते रह जाते हैं। खुदावंद के लोगों, आज हमें इस बात पर जरा ध्यान देना होगा, क्या खुदा ने हमें जज मुकर्रर किया है कि हम खादमों के खिलाफ बोलते रहें, अपने रूहानी रहनुमा के खिलाफ बोलते रहें?
कई दफा हम इन बातों को लेकर इतने संजीदा हो जाते हैं, जो बातें लोग नहीं करते वो हम करना शुरू हो जाते हैं। क्यों जी, ऐसा ही है ना? लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके ईमान के अंदर एक शिद्दत है, एक तड़प है, और ये शिद्दत और तड़प इस कदर बढ़ गई है कि वो अपने आका के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहता है, वो उसका साथ छोड़ना नहीं चाहता है। और मैं आपको बताता चलूं कि बैतेल में जितने अंबियाजादे थे, उसके बाद यरहू में जितने अंबियाजादे थे, ये जस्ट लाइक ऐसे है कि खुदा का बंदा एलिया आसमान पर उठाया जाने वाला है, और ये छोटी छोटी दरसगाहें हैं जहां पर एलिया खुद जाकर उन्हें खुदा के लिए तैयार करता था, उन्हें सिखाता था कि खुदा के साथ वक्त कैसे गुजारना है। और खुदावंद के लोगों, वो आसमान पर उठाए जाने से पहले खुदा का बंदा एलिया उनसे मिलने जाता है कि आज के बाद तो मैं इनसे नहीं मिलूंगा, इसलिए आखिरी मुलाकात कर ली जाए। हालेलुया। और इस मुलाकात के दरमियान देखें, अलीशा साथ नहीं छोड़ रहा, लेकिन दूसरे अंबियाजादे सिर्फ मिलते हैं और फिर वहां से ही टाटा बाय बाय हो जाता है। लेकिन अलीशा जो है वो उसके साथ साथ चल रहा है। 3 मर्तबा उसने कहा है, एलिया ने 3 मर्तबा कहा है तू यहीं ठहर। एक मर्तबा जिलजाल में उसे कहा कि तू यहीं ठहर, मैं बैतल से होकर आता हूं। फिर बैतल में कहा तू यहीं ठहर, मैं यरहू से होकर आता हूं। फिर यरहू में जब पहुंचे तो फिर वहां पर खुदा का बंदा एलिया कहता है कि तू यरहू में ठहर, मैं यरदन से होकर आता हूं। लेकिन वो तीनों मर्तबा एक ही गर्दान दोहरा रहा है, एक ही बात बार बार कर रहा है, मुझे खुदावंद की हयात की कसम, मुझे तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहां पर जरा जा खादम साडे मिजाज दे खिलाफ गल करे, ਉਹ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी खादम गुस्से में आता है तो उसके गुस्से में भी मोहब्बत झलकती है। मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, बेटा दुआ किया करो कि आपको कोई रोकने और टोकने वाला हो, यानी आपकी कोई देख रेख करने वाला हो, आपकी कोई कांट छांट करने वाला हो, आपको कोई भटकने ना दे, आपको कोई गिरने ना दे, आपको कोई ऐसी गुमराही में ना फेंक दे जिससे आप बाहर ना आ सकें। तो जब कोई आपको रोकने टोकने वाला होगा तो वो आपको गिरने से बचाएगा और खुदा की कुर्बत में बढ़ाएगा। हालेलुया। यहां पर खुदा का बंदा अलीशा तीसरी बार जब इनकार करता है कि मैंने वापस नहीं जाना, मैंने तुझे नहीं छोड़ना, तो खुदावंद के लोगों होता यह है कि एलिया उसे कहता है ठीक है फिर आजा तू मेरे साथ। यरदन पर चले गए हैं, यरदन पर जाकर उसने अपनी चादर ली है और चादर लेकर यरदन दरिया यरदन पर मारी है, पानी ने रास्ता दे दिया है। और होता क्या है, वो पार चले जाते हैं और वहां पर जाकर खुदा का बंदा एलिया आतशी रथ आते हैं और वहां से वो उठा लिया जाता है। जब वो उठा लिया जाता है तो वो थोड़ी दूर पीछे भागता है और भागते हुए वो पुकारता है, ए बाप तू मुझे क्यों छोड़ गया, ए बाप मैं अब क्या करूंगा।
اور وہ اس طرح پکارتے ہوئے رو رہا ہے، زارو کتار رو رہا ہے، ایون کہ اپنے وہ کپڑے بھی پھاڑ دیتا ہے اور نوحہ کرنے کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر آتشی رتھ جب لے کر جا رہے ہیں ایلیا کو، تو وہاں سے چادر گرتی ہے، اور وہ چادر اسی پر آ گرتی ہے، الیشا پر۔ خداوند کے لوگوں، اس کے ایمان کی شدت اور تڑپ نے اس کا سٹیٹس یہاں پر تبدیل کر دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو ایلیا گیا تھا وہ واپس نہیں آیا۔ جب ایلیا گیا تھا تو وہ ایک ماتحت کی حالت میں تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو وہ ایلیا کے دونا مسا سے بھرا ہوا ایلیا تھا۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے لوگوں، آج ہمارے ایمان کی شدت اور تڑپ کہاں ہے؟ ہم کیسے برکت پائیں گے؟ کیا خادم سر پر ہاتھ رکھے گا تب ہی برکت پائیں گے؟ اسی شدت اور تڑپ کو آج خدا آپ کی زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں نت نئے عجیب اور جلالی کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو یہاں پر آیا ہے اس کی جھولی خالی نہ جائے، بلکہ وہ اپنی برکتوں کو لے کر جائے، بھرپور ہو کر لوٹے۔ ہاللیلویا۔ سٹیٹس تبدیل ہو گیا ہے۔ جو واپس پلٹا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نبی کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب ضد کر کے شدت اور تڑپ سے بھرے ایمان کے ساتھ ہم ایسا کریں گے تو یقین جانیے ڈوبے ہوئے کاروبار چلنا شروع ہو جائیں گے، تیرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ ایلیا کی زندگی میں یہ معجزہ کہ وہ لوہا گرا اور اس نے لکڑی ڈالی، اور وہ جسے کلہاڑی کا وہ لوہا جدا ہو کر گرا تھا پانی میں، وہ رو رہا ہے کہ میں تو کسی سے مانگ کر لایا تھا۔ تو جب وہ پانی میں لکڑی ڈالتا ہے تو لوہا تیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی زندگی کے ڈوبے ہوئے کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائیں گے، آپ تیرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ڈوب رہے ہیں تو خدا آپ کو ہاتھ پکڑ کر تیرنا سکھائے گا اور آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ اس کی شکر گزاری کرتے پائے جائیں۔ ہاللیلویا۔ بڑی پیاری بات الیشا کی زندگی سے میں نے سیکھی کہ ایک وہ دیگ بنا رہے تھے کھانے کے لیے، تو اس میں زہر مل گیا کہیں سے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے برکت دی اور کہا بانٹ دو، کھاؤ۔ وہ ساڈیاں کوڑیاں نو بھی مٹھیاں بنان دی قدرت رکھدا ہے۔ ہاللیلویا۔ ارے ہم کچھ کریں تو صحیح، ایمان کی شدت اور تڑپ دکھائیں تو صحیح، خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے، جو گر کر اٹھے انہوں نے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ ہاللیلویا۔ جو گر کر اٹھے انہوں نے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ آج ہمیں بھی اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نکتہ چینی سے، تنقید کرنے سے، نقص نقائص نکالنے سے باہر آ کر ایمان میں شدت اور تڑپ دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ یقین جانیے خدا آپ کی زندگی میں بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور شخص ہے، یہ حوالہ ہم تلاوت نہیں کریں گے کیونکہ میں اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔
یہ آپ اپنے ٹائم میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں. پیدائش 32 باب ہے, 24 سے 26 آیت تک آپ جا کر تلاوت کر سکتے ہیں. اس میں ایک ہستی یعقوب ہمیں ملتا ہے, اور یہ یعقوب رات پوری مالدار ہے, برکتوں سے بھرا ہے, بچے ہیں, نوکر چاکر ہیں, بیوی ہے. خداوند کے لوگوں, جب وہ سویا ہوا ہے تو وہ پوری رات ایک شخص آتا ہے جس کے ساتھ وہ کشتی لڑتا رہتا ہے. خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی لمبی ترین, طویل ترین کشتی تھی جو کہ لڑی گئی. کس کس کو ریسلنگ پسند ہے؟ مجھے بڑی پسند ہے. اچھا, اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جب کشتی کا اختتام ہوا ہے تو ہوا کیا ہے کہ خدا کا بندہ فرشتہ کہہ رہا ہے مجھے جانے دے. وہ جو آدمی کی صورت میں آیا ہے وہ فرشتہ ہے اصل میں. فرشتہ کہہ رہا ہے مجھے جانے دے, لیکن اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ یعقوب نے اس کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. خداوند کے لوگوں, بیوی ہے, بچے ہیں, مال و متاع ہے, دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, نوکر چاکر, سب کچھ ہے. اتنی برکتیں ہونے کے باوجود وہ پھر برکت کے لیے بھوکا ہے اور کہہ رہا ہے جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. اور عزیزو, وہ فرشتہ بولتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے یعقوب. اور یہاں پر کشتی کا اختتام ہو جاتا ہے. وہ کشتی ہار کر بھی جیت چکا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز. وہ دھوکے باز سے نکل کر سٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے. وہ دھوکے باز سے خدا کا شہزادہ بن چکا ہے. اس کا نام اسرائیل ہو چکا ہے. ہاللیلویا. خدا آج آپ کے سٹیٹس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. بڑا پیارا ایک شعر ہے اس مناسبت سے آپ سب کی, بلکہ یہ ہم سب, میں آپ سب کو شامل کر کے یہ شعر کہنا چاہتا ہوں. ہے تو خاک مگر مسیح سے ہے نسبت اپنی. ہے تو خاک مگر مسیح سے ہے نسبت اپنی. بس ایک یہی رشتہ ہماری اوقات بدل دیتا ہے. ہاللیلویا. سٹیٹس تبدیل ہو جائیں گے, زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. صرف اس شدت اور تڑپ کو دکھانے کی ضرورت ہے, وہ بھی اپنے ایمان کے تھرو. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنے لوگ, ایک آخری حوالہ ہم دیکھیں گے اور ایک اور پرسنالٹی کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے. بڑی پیاری بات ہے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس کو. لوکا 19 باب ہے, اس کی پہلی 10 آیات میں یہ کہانی درج ہے, اور یہ زکئی کی کہانی ہے. ہاں جی, سب نے سنا ہوگا. بچپن سے سنڈے اسکول کی عمر سے ہم سنتے آ رہے ہیں. خداوند کے لوگوں, یہ شخص, یہ بھی آپ اپنے گھر میں جا کر پڑھیے گا. میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ بات چیت کر سکوں کلام کے وسیلہ سے. یہاں پر جو شخص زکئی ہے یہ بڑا ویل نون پرسن ہے. مطلب یہ عام آدمی نہیں ہے, یہ محصول لینے والوں کا سردار ہے. کیا ہے؟ اور جو سردار ہوتا ہے نا وہ عام محفلوں میں نہیں جاتے ہیں. کوئی خاص محفل ہو تب ان کو بلایا جاتا ہے, پھر وہ جاتے ہیں. یہ ایماندار شخص نہیں ہے.
लेकिन इसके अंदर ना एक शिद्दत और तड़प पाई जाती है। वो शिद्दत और तड़प यीशु को देखने की है। किसको देखने की है? हम सब भी जब यहां पर इकट्ठा होते हैं तो हम यीशु को महसूस करने के लिए, उसका दीदार करने के लिए यहां पर आते हैं। हालेलुया। इसी तरह ये ज़कई, इसने अपने स्टेटस को, अपने स्टैंडर्ड को एक साइड पर रखा है। कद उसका छोटा है, हम सब जानते हैं, लेकिन वो यीशु को देखने का बड़ा मुश्ताक है। उसे इस बात के लिए बड़ी तग्गोदो करता है कि मैं किसी तरह देख पाऊं। वो भीड़ में इधर उधर भागता है देखने के लिए, लेकिन नहीं देख पाता। वो करता क्या है? उधेड़ उम्र आदमी है, 45 से 50 इस पेटे में उसकी उम्र है, और वो बंदा भागकर दरख्त पर चढ़ता है। मुझे आज भी याद है, जब हम बाइबल स्टडी के लिए जाते थे तो उस वक्त 18-20 साल उम्र थी। तो हमने जब लेट हो जाना तो हम 3 दोस्त हुआ करते थे, और एक दोस्त जो है वो दुनिया से जा चुका है, वो खुदावंद में सो चुका है। अच्छा, एक दोस्त हमारा ऐसा था, हम जब लेट हो जाना तो हमने भागना शुरू कर देना। हमारे घर से जो स्टॉप है वो तकरीबन 10 मिनट का फासला है, तो हमने कोशिश करनी कि भाग कर ना इस फासले को तय किया जाए ताकि जल्द से जल्द हम पहुंच पाए, ताकि बाइबल को सीख पाए। अच्छा, लेकिन वो शख्स कहा करता था, ओ नहीं, पैंट शर्ट पहनी है यार, ना अच्छा लिबास पा के असी भजदे चंगे लगांगे, मैंने नहीं भागना, तुम लोग जाओ। अच्छा, जब ये बात होती तो हमने वाकई उसे छोड़ जाना और भागना शुरू कर देना। अब यही मोहब्बत जो उस वक्त हमारे दिल में मौजूद थी, मैंने जब पहली मर्तबा ज़कई के इस किस्से को सुना, समझा और पढ़ा, तो खुदा के लोगों, बात ये समझ में आई कि जब यीशु की लो लगन लग जाती है तो फिर सारे स्टेटस, सारे स्टैंडर्ड एक साइड पर चले जाते हैं। फिर सिर्फ और सिर्फ यीशु के दीदार की भूख और प्यास आपको उसकी हजूरी में लेकर जाती है। हालेलुया। ये शख्स रास्तबाज नहीं, लेकिन एक तड़प, एक भूख, एक प्यास लेकर वो दरख्त पर चढ़ा है, और उसके ईमान का कद इस कदर बुलंद हो गया है कि यीशु भी अपनी आंखें उठाकर कहता है, ऐ ज़कई नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर जाना जरूर है। हालेलुया। ये जो लफ्ज जरूर है ना, इसमें एक खास बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसके अलावा जहां भी कहीं जाना था, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी, वो सब की सब, वो सारे के सारे प्रोग्राम कैंसिल हो चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ ज़कई का ईमान नजर आ रहा था, इसलिए उसके घर जाना जरूर था। और कुछ लोग देखा देखी बड़ी खिदमत के लिए भागते हैं और पादरी साहब बनने की कोशिश करते हैं। मैं मना नहीं करता, लेकिन जरा यीशु के पीछे आने वालों का जरा हाल देख लें। जब यीशु घर में आता है, जरा गौर से सुनिएगा, यीशु जब घर में आता है तो घर में आकर वो खाना शाना लगा होता है, और ज़कई क्या करता है कि वो कहता है, क्या खुदावंद, मैंने जिसका नाहक लिया था उसे 4 गुना वापस करता हूं, आधा माल मैं गरीबों को देता हूं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं वो कितना अमीर, करोड़पति हो सकता है? 1 करोड़, 2 करोड़, कितना अमीर होगा? आधा माल उसने पहले गरीबों को दे दिया है, और 4 गुना उसने उनको दिया जिन लोगों का उसने नाहक लिया हुआ था। यानी वो बंदा पहली ही मुलाकात में यीशु के साथ, पहली ही मुलाकात में 0 पर आ गया। लेकिन याद रख लीजिए, जरा गौर से सुनिएगा,
बाइबल का खुदा जब अब्राहम को कहता है कि तू अपने नातेदारों को छोड़ और जहां मैं कहता हूं वहां चल, तो अजीजों इसका मतलब यह होता है वो अपना सारा मालो मता, रिश्तेदार, मां बाप, बहन भाई सबको छोड़े। सबको छोड़ने का मतलब अपने जायदाद का हिस्सा भी छोड़ना है। वो जीरो पर आ गया है। लेकिन जो खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं, बेशक वो जीरो पर हो, मेरा खुदा उन्हें हीरो बनाने की कुदरत रखता है। खुदावंद के लोगों, आज खुदा भी आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। चाहे आप जीरो पर हों, आपकी जिंदगी में वो बरकतों के ढेर लगाना चाहता है। एक मिसाल के साथ इस कलाम को हम इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। जिस तरह याकूब ने जब उसकी टांग पकड़ी हुई थी फरिश्ता की, तो उसने नहीं छोड़ा। उसने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमारे आज के लोग वो कहते हैं यीशु का सिर्फ इतना सा हाथ आए, हमें शिफा दे और बस वापस चला जाए। फिर दुआ भी किंज दी कर देने, ए हमारे बाप तू जो आसमान ते हैं तो तू आसमान ते रही, थले ना ही, क्योंकि मैं तेरी कोई गल नहीं मननी। ऐसा ही है ना। हम उसकी फरमाबरदारी में नहीं चलते, हम सिर्फ मतलबी मसीही बनते हैं। खुदावंद ये बरकत चाहिए, ये शिफा चाहिए, इस बीमारी से इलाज चाहिए, खुदावंद तू बरकत दे, लेकिन तू मेरे साथ कोई ताल्लुक वास्ता ना रख, क्योंकि मैं तेरे हुक्मों को नहीं मान सकता। एक उस्ताद के शागिर्द उसके पास जाते हैं और कहते हैं, उस्ताद जी, पादरी साहब, असी जदों तुहाडे कोल आने आ तुसी हसदे ही नजर आंदे हो, क्या वजह है? इतनी इतनी मुश्किल आप पर आती है, इतनी इतनी मुसीबत में से आप गुजरते हैं, लेकिन हमने जब देखा है आप हंसते होते हैं। उसने कहा मैं बताता हूं इसकी वजह। रास्ते में चल रहे हैं और एक दरख्त सामने आ गया है। उसने दरख्त को हक कर लिया है, यानी पंजाबी च कहते ने जफा मार लिया, और शोर पाना शुरू करता है। शोर डाला है, बचाओ बचाओ बचाओ। और वो क्या शागिर्द क्या कहते हैं, उस्तादे मोहतरम आपे तुसी जफा पाया है ते आपे इन्हू छड़ दियो। तो उस्ताद बोलता है, कहता है, ओ बेटा आपको क्यों समझ नहीं आती? आपने अपनी मुसीबतों, मुश्किलों, बीमारियों, लाचारियां नू ओए आप जफा पाया है। तुसी ओए दा जफा छड्डो ते यीशु नू जफा पालो। और जब यीशु को आप पकड़ लेंगे तो फिर जाने ना दीजिए, बल्कि ज़कई वांगू शिद्दत और तड़प दिखाइए और अपने घर में ले जाइए। आज सिर्फ बरकत नहीं मिलेगी, आज सिर्फ शिफा नहीं मिलेगी, अरे पूरे का पूरा यीशु मिल जाएगा। घर ले जाइए, बहाल हो जाइए, खुशहाल हो जाइए और उसकी शुक्रगुजारी से भर जाइए। खुदावंद इस कलाम के वसीले आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। खुदावंद तू ही है जो हमें संभालता है, तू ही है जो हमारी पनाह, हमारा जोर बन जाता है। तू ही है जिसके वसीला से प्यारे खुदावंद हम बीमारियों पर गलबा पाते हैं, हम शिफा से हम किनार होते हैं। खुदावंद तेरे वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील होती हैं। तेरा लहू हमें तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। बोलिए बोलिए, खुदावंद से मांगिए,
क्योंकि आज मांगने वालों को अता किया जाएगा। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, तेरे नाम की तारीफ हो मेरे खुदा। वो शिद्दत और तड़प आज मेरे खुदावन तू अपने लोगों में भर दे। अजीजों, वो शिद्दत और तड़प ले आइए अपने ईमान के अंदर, उस शिद्दत और तड़प, उस जिद को लाइए जिसके वसीला से खुदा के लोग खुदा को पसंद आते हैं। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। तू जो हमें संभालने वाला खुदा है, तू जो हमें हमारी पनाह, हमारा जोर बनने वाला खुदा है, तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र। मेरी गुजारिश है हाउस ऑफ प्रेयर की सारी लीडरशिप यहाँ स्टेज पर आ जाएं ताकि हम मिलकर खुदा के लोगों के लिए बाइस बरकत हो सकें, दुआ कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। आज हम शफायत करेंगे ताकि खुदा के लोग आज हाउस ऑफ प्रेयर से खाली न लौटें, बल्कि उसकी बरकतों से भरपूर होकर लौटें। आज खुदा हमारी कमियों कमजोरियों पर हाथ रखे, जिसके वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, तेरे नाम की तारीफ हो मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरे नाम की तारीफ हो। देख मेरे खुदा, तेरे लोग किस कदर आस और उम्मीद के साथ तेरी हुजूरी में आए हैं, और आज तेरे नाम को जलाल देने के लिए, तेरी जय जयकार करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी मेरे खुदा। दुआओं के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से उन्होंने खुदावन तुझे धन धन पुकारा है, तुझे मुबारक कहा है, और अपनी फरियाद तेरे हुजूर में पेश की है। प्यारे खुदावन, देख तेरे लोग किस बेताबी के साथ तुझे पुकार रहे हैं। आवाजों को बुलंद कीजिए, क्योंकि आज ही वो वक्त है जब हम अपनी बरकत खुदावन की हजूरी से लेकर जा सकते हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, तेरे नाम की तारीफ हो मेरे खुदा। तेरा कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर हम कोशिश में सुस्ती न करेंगे तो बाबरकत होकर लौटेंगे। बेशक मेरे खुदावन, तू आज अपनी कुदरत के साथ अपने लोगों पर अपने दस्ते शफकत को बढ़ा ले मेरे खुदा, ताकि इनकी जिंदगियां तेरे हुजूर से बाबरकत होकर लौटे मेरे खुदावन। यीशु के नाम से मेरे खुदावन, आज अपने जलाल को जाहिर करना, आज अपने चेहरे का नूर इन पर चमकाना मेरे खुदा। आज इनसे दूर खड़ा ना रहे, बल्कि अपना चेहरा इनकी तरफ फेर ले मेरे खुदावन, ताकि इनकी जिंदगियां तेरे चेहरा के नूर से मुनव्वर हो जाएं। यीशु के नाम से प्यारे खुदावन, आज हर एक बीमारी जो तेरे लोगों को परेशान किए हुए है, यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे खुदा। आज तू प्यारे खुदावंद अपने लोगों को अपनी बाहों के घेरा में लेना, यीशु के नाम से इनकी तसल्ली, इनका इत्मीनान बन जाना मेरे खुदा। अपना जलाली हाथ बढ़ाकर इनकी बीमारियों को दूर करना मेरे खुदा। कमी घाटे यीशु के नाम से पूरे हो जाए मेरे खुदावंद। रुके कारोबार यीशु के नाम से चल पड़े मेरे खुदा। खुदावंद यीशु के नाम में आज तेरे लोगों के लिए बरकत को कलेम करते हैं। वो तमाम शुगर जो तेरे लोगों को परेशान किए हुए हैं, यीशु के नाम से मेरे खुदावंद शुगर शिफा में तब्दील हो जाए मेरे खुदा। यीशु के नाम से मेरे खुदावंद तू आज अपने लोगों को शिफा याब करके लौटाना मेरे खुदा। वो गिल्टियां, वो रसौलियां जो तेरे लोगों के लिए मेरे खुदावंद रुकावट है, बंधन है, जुआ है, यीशु के नाम से टूट जाए। In the name of the Lord Jesus.
यीशु के नाम से वो रसौलियां प्यारे खुदावंद गायब हो जाएं इन बदनों से, वो गिल्टियां गायब हो जाएं इन बदनों से, और ये बदन मुकम्मल तौर पर छू ले मेरे खुदा। और आज तेरी कुदरत हर एक बदन में से गुजर करे मेरे खुदा, हर बीमार बदन शिफा पाए मेरे खुदा, हर बीमार बदन आज तेरी हजूरी से भर जाए मेरे खुदा, और तेरे लोग बाबरकत होकर तेरे नाम की जय जयकार करते छू ले मेरे खुदा। आंखों के मसाइल यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाएं, आंखें शिफायाब हो जाएं मेरे यीशु के नाम, बहरे कान खुल जाएं यीशु के नाम में, कानों के मसाइल शिफा में तब्दील हो जाएं मेरे। ये बदन जो तेरी हजूरी में बड़ी आस और उम्मीद के साथ खड़े हैं खुदावंद, ये आज अपनी मुराद लेकर लौटे मेरे खुदा, कोई खाली दामन ना लौटे मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, तेरे नाम की तारीफ हो मेरे खुदा। तेरा आसमान जो तेरे लोगों के लिए खुल चुका है, तेरी शिफा जो तेरी हुजूरी से जारी और सारी हो चुकी है मेरे खुदा। आज तेरे लोग प्यारे खुदावंद महसूस करें कि तू उनकी जिंदगियों में नाम बनाम काम कर रहा है मेरे खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, बांझपन यीशु के नाम से टूट जाए मेरे यीशु के नाम, यीशु के कादर नाम में, यीशु के नाम मेरे खुदावंद। तू बांझ को औलाद वाली बनाने की कुदरत रखता है। हो खुदावंद, तू आज वो सारे बांझपन तोड़ दे मेरे खुदा, और अपने लोगों को साहिब औलाद कर शुक्रगुजारी से भर मेरे खुदावंद। तू छू ले इन जिंदगियों पर अपने जलाल को जाहिर कर मेरे खुदा। ओ खुदावंद, तेरा रूह तेरे लोगों को छूए मेरे खुदा। खुदा पाक रूह तू अपने लोगों को छू ले और इनकी जिंदगियों में गहरा काम कर मेरे खुदा। इन्हें बदलने की तौफीक दे मेरे खुदा, इन्हें अपनी सरिश्त को तब्दील कर दे मेरे खुदा। अपनी तब्दील शुदा जिंदगी को ये तेरे हजूर में दे सके मेरे खुदा, ताकि इनकी जिंदगियां बाबरकत हो, तेरे लायक हो, निजात से भरी हो मेरे खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं मेरे खुदा। हम तुझे अपनी जिंदगी में ऊंचा और सर बुलंद करते हैं, क्योंकि तू शाफी खुदा है और अपने लोगों को शिफा देने की कुदरत रखता है मेरे। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो तेरे नाम।